बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। Good afternoon, one of our present over here, respected principal ma'am, professors, and my dear students. I am Chandrika, assistant professor of botany. I am Meena, assistant professor zoology from Department of Biosciences, welcomes you all. जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। International Women Day is celebrated annually on March 8. It is a global event that celebrates women's achievements, struggles, and the ongoing fight for gender equality. This day strives discussions, actions, and reflections on the progress made and the challenges that persist. The theme for International Women Day 2024 is Inspire Inclusion. एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले। अब मैं प्रधानाचार्य महोदया जी से निवेदन करूंगी कि वे हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। Thank you, ma'am. So, activities for today's program, we have a card making competition. Next, we have transition of women through different era in the form of rap walk, fun competition, fun games, presentation, and speech. Now, I invite Saloni and Sejal from BSc first year for presentation. Respected principal ma'am, teachers, my seniors as well as my classmates. I, Saloni, student of BSc First, is now going to give a presentation on International Women's Day. Women as Nation Builder. International Women's Day is celebrated on 8th of March every year to spread the message of gender equality to create better society free of gender based. Women empowerment. Women empowerment means freedom of women from the vicious grips of social, economical and other caste-related and gender-based discrimination. It elaborates that social rights must be equal to women also. Need of women empowerment. Women are worshipped in India as goddess, but not given their true positions. Women are deprived of decision-making power, freedom of movement, access to education, access to employment, and domestic violence. Status of women in Indian society. In order to awaken people, it is the people who have to be awakened. Once she moves, the country moves, and thus we can build the nation for tomorrow. To achieve and sustain the high rates, access in education should be open for each and everyone without any discrimination. Status of women in modern India. Position and stance of today's women in India is considerably changed in modern India. A country or a community cannot be considered civilized where women is not honored. Women of recent times like Mother Teresa, Vijay Lakshmi Pandit, Mrs. Pratibha Patil have achieved international praise. 6S for women. The first is Shiksha, Swasthya, Swavalamban, Samajik Nyay, Samvedan and Samta. So that's all about International Women's Day. We also have women presented here like our principal ma'am, teacher staff and all the girls today. Thank you and have a nice day. कंधा मिलाकर खड़ी हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, IPS, IAS, साइंटिस्ट, आर्मी, मॉडलिंग, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसी सिलसिले में इस वर्ष हिमाचल की हमीरपुर जिले से संबंध रखने वाली डॉक्टर सीमा शर्मा को इंटरनेशनल वुमेन डे पर UN द्वारा सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर सीमा शर्मा IIT दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं, जो कि हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आइए स्वागत करते हैं बीकॉम की छात्राओं का। रैंप वॉक के जरिए ये बताएंगी कि ट्रांजिशन कैसे हुआ है वुमेन का डिफरेंट ईरा में।
बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से हाँ, कोई तो जल सिद्ध पड़िए, तुम पे डरिए या मरिए। शक्ति है इंडिया, शक्ति है इंडिया, शक्ति है इंडिया, इंडिया। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम भी करिए या करिए। हाँ, कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम भी करिए या करिए। शक्ति है इंडिया, शक्ति है इंडिया, शक्ति है Today, I'm Nivedita of BTC Living College of Education. I'm here to share a poem titled, "Do not call me beautiful. Do not tell me I am beautiful. Do not reduce my existence to my mere face. For I am lightning that will set forest on fire. I'm your tongue after having too much spice. Do not mistake me for a delicate ball of cotton. My fingers are like sandpaper. My fingers are like sandpaper. I will tear your skin apart. The women I know and the women I am. We are an impending yet necessary doom. We will take over the world someday. We are Ranis of Jhansi and Jones of Ace. We are Phulan Devis and Razia Sultan. If you bite into our warm hearts, you will find your teeth melting. Your mouth will come undone. Do not mistake us for timid weaklings. We will bleed and bleed till our bodies cleanse themselves. We will bear courage in our wounds. We'll give birth to rebellion, soaked in the blood of our social norms. Do not tell me I am pretty. Read my poems. Tell me you admire them. Look up to me for my art and my words. Appreciate my poetry. The women I know and the women I am have more to us than just desirable body parts. Do not tell me that my eyes are amusing. Talk to me about the way I see things. Talk about my opinions. Do not reduce me to so much as a treat to your own eyes. My beauty
the way I rise my voice against injustice. My beauty lies in uplifting and empowering other women around me. My femininity is not threatened by my fellow women. It is an asset. My womanhood is not always sunflower fields and summer dresses. My womanhood is wars and battles, victories and success. My beauty is more than just a set of features. My beauty is in my kindness, my empathy, my strength, my will, my success, my determination, and my freedom to make my own choices. So do not tell me that I am beautiful, for I am more than just my face, and you wouldn't be able to seize this fire that my existence brings about. Thank you so much. बनाने के लिए हजारों फूल चाहिए, एक माला बनाने के लिए हजारों दीपक चाहिए, एक आरती सजाने के लिए हजारों फूल चाहिए, एक समुद्र बनाने के लिए, मगर एक स्त्री ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मगर एक स्त्री ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। नमस्कार आदरणीय ब्रह्मचारी महोदय, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं चंद्रिका स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है मैं हूँ आज की नारी। मैं हूँ आज की नारी, अबला नहीं हूँ चिंगारी। मैं हूँ आज की नारी, अबला नहीं हूँ चिंगारी। मेरे
दिया मंडी पर। मंडी जिसकी कीमत तय करता केवल नर ही, नर को चाबुक मिली हाथ में, नारी को बस डर ही। नारी करती रही काम छोटे चाबुक की रहकर, आहें भरती रही सदा रह रहकर सहकर। इस पर भी नर हुआ नाही कभी नारी का आभारी, वित्त सत्ता के झोल में नारी रहेगी मात्र बेचारी। नर दासा बनकर बैठा और बन गई दासी, समता के सपनों को सदा लगते आई फांसी। इस फांसी का कारण क्या है? बस एक नारी होना, क्या यह कारण कर देता है हमको इतना बोना? ज्यादा हो अधिकार नरों में, ऐसा अद्भुत उनमें क्या है? दो मस्तक है या पूरी सोने की काया है? होते भी तो ये बात गलत ही होती, समता के अधिकार मनुष्य का बात ये फिर भी होती। ऐसे पक्षपाती समाज का हिस्सा भले बने क्यों, और नारी को ठुकराए ऐसी संतानहीन जने क्यों? अगला प्रश्न करो आगे बढ़कर सारे धर्मों से, कुतर्कों से तोड़ो अपने संयमबद्ध तर्कों से। पूछो सबने नारी को आका था क्यों गम किस कारण? सब ग्रंथों में लगती क्यों है नारी मात्र भिखारन? पति को है ये छूट की रख ले 4 पत्नियां साथ, इस चक्कर में केवल नारी ही होती बर्बाद। वर्षों से एक चित्र खड़ा है विष्णु और लक्ष्मी का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का। अनुचित है यह कहे नहीं तो और भले क्या बोले, क्या आंखें हम बंद कर ले और साथ इन्हीं के होले। बुर्खा घूंघट सब महिला पर पर्दा करे हम ही हम, और वो भी क्यों? मर्दों से नहीं होता अपने मन पर संयम। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किस ये संग खड़ी हो, अपने पद पर हो या पुरुषों के पद पर चलती हो। अरे शिव के 3 नयन सोने दो, इस शिव के 3 नयन सोने दो, अपने 2 तो खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। The conversation. Women can change the game, and yes, women can change the world. This is Bhumika Thakur, a student of BBA second semester, currently standing on the dais to recite poems on behalf of our queens. Yes, I'm talking about our women. I am a woman. Give me the courage to roar, to move forward into this uncertain world and seek opportunity. Because when it does not seek me to open all the doors, I am a woman. Let me speak my words, my thoughts. Let them sing to you. Let them resonate. Let them be reflected upon. I am a woman. There will be hurdles and mountains, but I will climb. I will jump. I will snap my fingers to bones to reach at the summit of the mountain. I may not be smiling, but I will be thriving. My heart will be beating and open. I will have done it. Triumphed, prevailed, like a ship when that had all but sailed. We are women together. We have that power to increase our choices. We can increase our powers. I am a woman. Give me the courage to roar. Now I will enter to this poem with a quotation that I know my word. I embrace my power. If I say I am beautiful, if I say I am strong, you will not determine my story. I will. Thank you. Thank you, Bhumika. अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथी सहपाठियों, मैं सिलोनी बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा आज आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आएगी। और मेरी कविता का शीर्षक है मैं खुद में पूरी। जननी हूँ और जीवन भी मैं, जननी हूँ और जीवन भी मैं, जज्बातों पे तो मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ और साकार भी, सशक्त हूँ और साकार भी, नारी हूँ कमजोर नहीं। दर्पण हूँ और अक्स भी मैं, दर्पण हूँ और अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ और आत्मनिर्भर भी, स्वाभिमानी हूँ और आत्मनिर्भर भी, टूट के दिखूं अब वो वक्त नहीं। ना समझना आधी अधूरी, ना समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ चढ़ाना, साथ चलना
पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सलोनी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सारे सहपाठियों, मैं सिमरन CSC प्रथम वर्ष की छात्रा आपके सामने महिलाओं के सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कृपया करती हूँ कि आप उसे ध्यान से सुनेंगे। हर एक ख्वाहिश को अपने अंदर दफन कर लेती है, हर एक ख्वाहिश को अपने अंदर दफन कर लेती है। समाज क्या कहेगा, डर से कुछ नहीं कह पाती है। उसकी आजादी से घर में कुछ भी हलचल नहीं, उसकी आजादी से घर में कुछ भी हलचल नहीं। लोगों में उसके चरित्र पर बवाल मच जाती है। कुछ कर गुजरने का हुनर वो अपने अंदर रखती है, कुछ कर गुजरने का हुनर वो अपने अंदर रखती है। हर बार लोगों के कानों से एक जगह रह जाती है। पढ़ लिख के जब जॉब का ख्याल जहन में लाती है, पढ़ लिख के जब जॉब का ख्याल जहन में लाती है। घर में नहीं ऐसा रिवाज सुन के चूल्हे तक ही रह जाती है। नारी प्रेम का आगार हो तुम, जो घर आंगन को रोशन करती। नारी सूरज की सुनहरी किरण हो तुम, नारी ममता का सम्मान हो तुम, नारी ममता का सम्मान हो तुम। नारी संस्कारों की जान हो तुम, स्नेह प्यार और त्याग की, स्नेह प्यार और त्याग की। नारी इकलौती पहचान हो तुम, नारी इकलौती पहचान हो तुम। नारी कभी कोमल फूल गुलाब हो तुम, नारी कभी कोमल फूल गुलाब हो तुम। नारी कभी शक्ति के अवतार हो तुम, तेरे रूप अनेक। नारी ईश्वर का चमत्कार हो तुम। धन्यवाद। थैंक यू सिमरन। आवाज उठा अब शस्त्र उठा, आवाज उठा अब शस्त्र उठा। अब अश्रु नहीं तू आंख दिखा, पैरों में तुझको रोने जो, पैरों में तुझको रोने जो। उसको करके तू खाक दिखा। नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आज मैं कोमल वर्मा BSc प्रथम की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि पुरुष प्रधान समाज में नारी की दशा को दर्शाती है। वर्षों से जो बंद पड़े हैं, वर्षों से जो बंद पड़े हैं, नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो। अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे, अब तक जो घूंघट के नीचे। ढांप रही है अपने मुख को, ढांप रही है अपने मुख को। छोड़ के पर्दे बोलो, नारी आओ बोलो। सबसे पहले प्रश्न करो तुम, सबसे पहले प्रश्न करो तुम उन लोगों से जाकर, रोए जो लड़की के होने पर, हंसे पुत्र को पाकर। भेद किया क्यों तुमने, भेद किया क्यों तुमने, जब ना भेद किया था रब ने। भेद किया क्यों तुमने, जब ना भेद किया था रब ने। नंगा भेद दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। दूध मांगते पुत्र तो क्या, दूध मांगते पुत्र तो क्या, हम रब तुम्हारा पीती। दोनों के आहार एक से हम भी यही जीती। अन्न अगर बेटे को देते, अन्न अगर बेटे को देते, हम भी अन्न ही खाते। बेटे से अलग हम भी सोना नहीं खाते। पूछो उनसे, पूछो सबसे, पूछो उनसे, पूछो सबसे, जिन्होंने भेद किया शिक्षा में। लड़की को चूल्हे पर भेजा, लड़के को कक्षा में। और पूछो उनसे भी, जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम करवाया। लोग कहेंगे क्या, लोग कहेंगे क्या, इसका शिकार बनी क्यों नारी, क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न, पूछो सारे प्रश्न, सभी बातों को नापो तोलो, आओ नारी बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से, अगला प्रश्न करो तुम समाज से। पूछो ये सब क्या है, समता के अधिकार न रखना क्षमता की हत्या है। बहलाया फुसलाया सबने, कन्या
केवल नर ही, नर को चाबुक मिली, हाथ में नारी को बस डर ही। नर दाता बनकर बैठा और औरत बन गई दासी, नर दाता बनकर बैठा और औरत बन गई दासी, समता के सपनों पर सदा से लगती आई फांसी। और इस फांसी का कारण क्या है? और इस फांसी का कारण क्या है? बस एक नारी का होना। क्या ये कारण कर देता है हम सबको होना? घुट घुट कर जीना भी जीना होता है क्या? घुट घुट कर जीना भी जीना होता है क्या? बोलो नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो तुम आगे बढ़कर सारे धर्मों से, अगला प्रश्न करो तुम आगे बढ़कर सारे धर्मों से, कुतर्कों को तोड़ो अपने संयम व तर्कों से। पूछो सबने नारी को आंका था कम किस कारण? पूछो सबने नारी को आंका था कम किस कारण? सब ग्रंथों में लगता है कि नारी मात्र कारण। देना हुनर को तलाक पे चाहे, देना हुनर को तलाक पे चाहे जब ले जाए, और पत्नी को पहले पति से अनुमति पाए। वर्षों से एक चित्र खड़ा है विष्णु और लक्ष्मी का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का। अनुचित है ये कहे नहीं और भला क्या बोले, क्या आंखें हम बंद करें और साथ इन्हीं के बोले। बुर्खा घूंघट महिला पर पर्दा करे हम, बुर्खा घूंघट सब पर्दा महिला पर करे हम, और वो भी क्योंकि मर्दों से नहीं होता अपने मन पर संयम। अंतिम प्रश्न करो तुम खुद से ही, अंतिम प्रश्न करो तुम खुद से कि किसके संग खड़ी हो, अपने पद पर हो या पुरुषों के पद पर चले हो। अरे शिव के 3 नयन सोने दो, शिव के 3 नयन सोने दो, अपने दो तो खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। धन्यवाद। थैंक यू कोमल। वजूद फुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद फुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे प्यारे अध्यापिकाएं और मेरा भाषण सुनने वाले सभी खूबसूरत मेरी अध्यापिकाएं, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि महिलाओं का समाज में सृजन में बहुत बड़ा योगदान है, उनको हमेशा सम्मान करना चाहिए। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।
सम्मान करना है। जितना पुरुष जाति का योगदान है उतना ही नारी जाति का भी योगदान है। इसीलिए हमें नारी को एक प्रमुख स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो देवी रूप में है, वो अनंत है। अंत में मैं नारी के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। तुम प्रेम हो, तुम आस्था हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की जान हो, तुम जान का आधार हो। नफरतों की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, नफरतों की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन ही नहीं, तुम हर दिन खास हो, केवल एक दिन ही नहीं, तुम हर दिन खास हो। थैंक यू। आचार्य महोदय जी, प्राध्यापक पर और मेरे प्रिय सहपाठियों, सबसे पहले आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा आज आपके सामने महिला दिवस पर कविता बोलने जा रही हूँ। मेरी कविता कुछ अटीपटी सी, कुछ चटपटी सी है। मजदूर है, डॉक्टर है, लेक्चरर है, मजदूर है, डॉक्टर है, लेक्चरर है, हर औरत में छुपा हुआ एक कलाकार है, हर औरत में छुपा हुआ एक कलाकार है। एक कलाकार एक्टिंग करके अपने बाबुल नू टेढ़ियां मेढ़ियां रोटियां खवाउंदा है। एक कलाकार अपने बाबुल नू टेढ़ियां मेढ़ियां रोटियां खवाउंदा है। एक कलाकार बहाने बना के अपने मां कोलों घर दे काम तो मुकर जांदा है। एक कलाकार सोहरियां दी लाज रखदा है ते सोहरियां घर जाके हर मन प्यारा हो जाता है। मोटे नाल मोटा मिला के, मोटे नाल मोटा मिला के तोड़ने नाल मजबूत सारा हो जाता है। एक कलाकार दुनिया च नवी जिंदगी जिउंदा है। गाना नहीं होता इसनू गान, गाना नहीं होता इसनू गान, पर ये लोरियां सुनाउंदा है। एक कलाकार कदे भालू, चिड़ी, तोता बन के अपने बच्चों को पतियाउंदा है। एक कलाकार टीका लगे न्याणे नू वेख के ते आप रोण लग जाता है। एक कलाकार टीका लगे न्याणे नू देख के ते आप रोण लग जाता है। एक कलाकार सोहरियां से पेटियां की लाज रखता है। एक कलाकार अपनी घर की इज्जत रखता है। एक कलाकार कदे रिटायर नहीं हुंदा है। एक कलाकार कदे रिटायर नहीं हुंदा है। इस कलाकार दे नाल ही ये संसार जिउंदा है। इस कलाकार दे नाल ही ये संसार जिउंदा है। रब ने मोह दी मिट्टी दे नाल इस संसार नू कढ़िया है। रब ने मोह दी मिट्टी दे नाल इस कलाकार नू कढ़िया है। रब ने इदे रोम रोम च सिद्धत हौसला प्यार भरिया है। रब ने इदे रोम रोम च सिद्धत हौसला प्यार भरिया है। शाला जिउंदा रहे कलाकार, शाला जिउंदा रहे ये कलाकार ते इसदा वसदा संसार, ते इसदा वसदा संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच शिवानी, आपने बहुत ही सुंदर लफ्जों में महिला के सभी कलाकारियों के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखता है। ओके, जिंदगी के खेल में, रास्तों के मेल में कुछ खिलाड़ी हारे भी, कुछ रास्ते नकारे भी। गिरना संभलना, गिर के फिर संभलना, ये सब इसके हिस्से हैं। चढ़ जाए तो बुलंदी, वरना तो सब किस्से हैं। थैंक यू। हम चाहते हैं थोड़ा सा फन भी हो जाए, तो आगे हमने फन गेम्स रखी हैं आज के इस फंक्शन में। तो जो फन गेम्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो आगे आ जाएं और फन गेम का जो सेटअप है वो प्लीज तैयार कर दें। पावर डालना है, सेकेंड आपने मटर को पील करना है। थर्ड लेवल आपके सामने शीट रखी गई है, उसमें जो शेप बनी है उसको आपने पेंट करना है, स्केच करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है आपका जिसमें आपने बलून ब्लो करने हैं और एक बलून बाउंस करते हुए आगे ले जाना है और नीचे पड़ी मैच स्टिक को कलेक्ट करना है और लास्ट जो बलून है रखा उसको बर्स्ट करना और आप विनर बनेंगे तभी।
पड़ेगा, तेरे लिए रख दो फिर बाद में उठा लो। इतने अच्छे से तैयार हो गई थी। हम अच्छे से किया। पूरी शेप फिल करनी है आपको। टीचर्स प्लीज देखिए जरा, आगे ऑब्जर्वेशन दे दे अपनी। बहुत दिखती है। फाइनल विनर हमारे पास मिल चुका है हमें फनी गेम का, ज्योति 20 सेकेंड ईयर। जोरदार तालियां हो जाए ज्योति के लिए। बार गिरकर संभलना सीख रही है वो, जो कहते थे कमजोर है वो, आओ आकर देख लो, बिन सहारे के तुमसे भी आगे बढ़ना सीख गई है वो। कार्यक्रम के अंत में मैं बुलाना चाहूंगी प्रधानाचार्य महोदय जी को कि वे मंच पे आए तथा अपने शब्दों से बच्चों को प्रोत्साहित करें। प्रिंसिपल मैम। आज इंटरनेशनल वुमेन डे की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और लेडी टीचर्स हैं उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। वे सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे का हर चीज का एक ना एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसका भी एक उद्देश्य है, जैसे कि हम चाहे 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, पर आज भी मैं महसूस करती हूँ, चाहे हम सेल्फ डिपेंडेंट भी हो गए हैं, पर फिर भी हमारी डिपेंडेंसी है। तो आज मैं यही चाहूंगी अपनी लेडी टीचर्स से और अपनी गर्ल्स स्टूडेंट से, आज एक प्रण लें कि वह अपने जो डिसीजंस हैं वह खुद ले सकें और इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि उनके जो डिसीजंस हैं उन पे उनको गर्व हो। क्योंकि एक जो लेडी है वो हर डिसीजन ले सकती है, वो इतनी सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए कि उसको किसी की जो है हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कि जैसे कि हर डिसीजन के लिए, चाहे आर्थिक रूप से है, चाहे सामाजिक रूप से है, चाहे हमारे गृहस्थ जीवन में है, तो ये जो हमारी एक सोच बन गई है, हम ले लेंगे डिसीजन, फिर हम पूछेंगे कि ये ठीक है। पर ये अपने पे जो है हर लड़की को और हर लेडी को एक जो उसमें इतनी स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो ठीक है। तो इसको हम बनाने का एक ही कारण है कि हम जो लेडीज हैं
वो आत्मनिर्भर बने, अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। हमें अपनी हैप्पीनेस अपने में ढूंढनी है, ना कि दूसरे को देख के कि वो खुश है तो हम भी खुश हैं। हैप्पीनेस जो होती है हमारी इंटरनल अपने पे निर्भर करती है। तो लेडीज, आज भी मैं ये चाहूंगी हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स, लेडी टीचर्स हमेशा जो है अपनी गर्ल्स फीमेल चाइल्ड को अपलिफ्ट करें और उनको किसी भी दिशा से कम ना रखें, क्योंकि तभी हम लेडीज ही इस चीज को समझ सकती हैं और अपने समाज में लेडीज का जो नाम है वो रोशन कर सकती हैं और उनको ऊपर उठा सकती हैं। तो बहुत अधिक समय ना लेते हुए फिर पुनः कहूंगी कि अब रिजल्ट इन्होंने निकाल दिए हैं। बहुत सुंदर आइटम्स, फनी आइटम्स भी रखी हैं। हर तरह की बच्चियों ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो कविता, कुछ बच्चियों की मुझे कविता लगी ऐसे रिसर्च बेस्ड कविता लगी, जैसे कि उन्होंने कहा हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया जो देवियां हैं वो हम ही हैं, जो वुमेन है वही देवी है, उनके नाम अनेक हो गए हैं। तो जैसे हम देवियों की पूजा करते हैं हमें अपनी भी पूजा करनी है। हमें किसी से कम नहीं आंका जाना चाहिए कि हमें अपनी पूजा खुद करनी है, हमें अपनी एंजॉयमेंट खुद करनी है। तो बड़ी अच्छे ढंग से कुछ लड़कियों ने जो कहा है, तो मुझे अच्छी लगी कविताएं कि उन्होंने जो कुछ शब्दों का उसमें प्रयोग किया वो बहुत ही अच्छे थे। तो मैं अब रिजल्ट अनाउंस करूंगी। तो कार्ड मेकिंग में रितिका बीएससी सेकंड ईयर की फर्स्ट स्थान पर रही है। रितिका बीबीए सेकंड ईयर सेकंड। नवेदिता बीएससी फर्स्ट ईयर थर्ड। फनी गेम रिजल्ट है ज्योति बीए सेकंड ईयर। ये मुझे लगा कि इसमें कम लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत इंटरेस्टिंग गेम थी। तो इसके लिए मैं ज्योति को अपनी पर्सनल उससे प्राइज देते हैं हम 501 का। पोएम रेसिटेशन शिवानी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट। सुलोनी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड। भूमिका बीबीए सेकंड ईयर थर्ड। म्यूजिकल चेयर रेस रखी गई, बहुत इंटरेस्टिंग वे से बच्चियों ने हिस्सा लिया। दिया बीए सेकंड ईयर फर्स्ट। और मैं देख रही हूँ कि सभी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं ये सब इवेंट्स के लिए बधाई के पात्र हैं, और सभी जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है वो अपनी मैडम मीना से रिफ्रेशमेंट लेके जाएंगे। थैंक यू।